Dr. Ali Asgar, who is going to be forwarding his arguments in favor of sulfonylureas as a second-line agent after metformin. Thank you very much. So, Assalamu alaikum, everybody, and welcome you all once again to day 3. Excellent the way Dr. Abrar you have organized and scientific committee as well. Omar, fantastic job. I loved the entire session, especially the session this morning. Now, this is a tough competition. We have already had a voting, and I'm not starting as a favorite, so I start as an underdog, so there is no pressure on me. For the next 15 minutes, let's see the role of sulfonylurea as a second-line medication in type 2 diabetes. Now these are some Toyota Corolla models. You've learned a lot of endocrinology in diabetes. So Toyota ki gadiyan bhi dekhte hain. So this is 2014 model, and this will be driven by Dr. Naeem Khan, the SGLT2 inhibitors, right? And this is 2006 model to be driven by Dr. Waqas Shafiq, the DPP4 inhibitors. और ये मेरी गाड़ी है. And you know how कितनी पायदार ये पुरानी गाड़ियां होती है, और मैं आपको भी 15 मिनट में बताने लगा. This will be driven by me. So you like it, right? Your smiles show it. Thank you. So let me tell you, this is an arranged marriage. I mean, one day Omar sent me an email. You have to talk on sulfonylureas, and before coming here, I just got to know this is a debate. So let's do it. हमने 12 साल पहले भी arranged marriage करी, माशाल्लाह कामयाबी से चला रहे हैं हम. हम नहीं चला रहे, बेगम कामयाबी से चला रही. She gets the credit, you see. So इसको भी इंशाल्लाह कामयाबी से चलाएंगे. So sulfonyl जी नहीं, वो शादी पे बात नहीं करना, sulfonylurea पे बात करें. So sulfonylureas we are taking since 1956, 65 years and still counting. अब अगर आगे बढ़े, what are the key needs while treating diabetes mellitus? Now we've got a lot of medications, DPP4, SGLT2, sulfonylureas. क्या चाहिए हमारी second line medication में, होना क्या चाहिए? Powerful efficacy, safety. You need end organ protection. You need cost effectiveness. देखें, जो क्रिकेट के मैच में ओपनर होता है ना, उसको तीसरे चौथे नंबर पे भेजेंगे, इज नॉट गोइंग टू फंक्शन. चौथे नंबर के प्लेयर को ओपनर पे भेजेंगे, इज प्रोबेबली गोइंग टू गेट अ डक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिच द राइट मेडिकेशन एट द राइट टाइम. हर अच्छी चीज जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आती है, इसी पे बात करेंगे आगे. Powerful efficacy. Now this is the A1C reduction. Now look at DPP4, 0.5 to 1% reduction, same as SGLT2 inhibitors. I like both these medications, believe me. Today I love sulfonylureas, right? 1 to 2% A1C reduction, double the reduction compared to DPP4 inhibitors and SGLT2 inhibitors. So diabetes में सबसे पहला गोल है क्या? Diabetes control, HbA1c control, वो है तो बाकी चीजें हैं, ठीक है? आप बर्थडे पार्टी होती है, उसमें बलून भी लेकर आ गए, पीछे हैप्पी बर्थडे भी लेकर आ गए, केक ही नहीं है. There has to be a cake there. A1C reduction सबसे important है डायबिटीज में, और मैं आपको बताऊंगा क्यों. So more potent medication in the earlier stages of type 2 diabetes when a patient has an increased pancreatic beta cell function. शुरू में beta cells हमें पता है 50% of the beta cells they die, and then beta cells are dying at a rate of 4% per year. So use the beta cells initially to control diabetes and get the benefits of the legacy effect in the long run. शुरू में use करना sulfonylurea को ज़्यादा अच्छा है. The concept is now changing from beta cell. पहले beta cell preservation होती थी. कितने लोग कहते हैं हाँ ये कॉन्सेप्ट था बीटा सेल्स को बचाओ? हाँ उठाएं जरा. पहले कहते हैं बीटा सेल्स को प्रिजर्व करो, ये एग्जॉस्ट कर देंगे. वेरी गुड. नाउ द कॉन्सेप्ट इज चेंजिंग टुवर्ड्स अर्ली इंसुलिनाइजेशन. तो ये तो हिपोक्रेसी है ना, बीटा सेल भी बचाओ फिर अर्ली इंसुलिनाइजेशन भी करनी है. तो बचाएं किसने बीटा सेल? यूज द बीटा सेल्स टिल यू हैव इट. मेक hay while the sun shines. जब है बीटा सेल्स तो यूज करो शुरू में. दैट्स द गोल. कंट्रोलिंग A1C, so glycemic control should be the top priority in diabetes. ये देखिए स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के रिस्क फैक्टर्स, सबसे टॉप पे है हीमोग्लोबिन A1C. फिर बहुत सारे और फैक्टर्स हैं इसमें, फिजिकल एक्टिविटी है, स्मोकिंग है, मैरिटल स्टेटस है. उसको तो नहीं चेंज कर सकते आप मैरिटल स्टेटस को. यू कैन चेंज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c को आप बेहतर कर सकते हैं. दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग वेदर यू विल गेट अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन और अ स्ट्रोक. नाउ लुक एट दिस. A1C कंट्रोल हम कितना करते हैं? हम बातें कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी. डायबिटीज अभी शुरू हुई है, पहले 10 साल में डायबिटीज कंट्रोल करना है. 10 साल के बाद हमें पता है कॉम्प्लिकेशंस तो लेट आती है, एंड वी नो देयर इज अ लेगेसी इफेक्ट, एंड वी नो दैट इन द इनिशियल 5-10 इयर्स वी नीड टू कंट्रोल डायबिटीज. ये देखें जरा, पाकिस्तान में 69% ऑफ द पेशेंट्स आर अनकंट्रोल्ड विद देयर HbA1c.
एक और स्लाइड थी मैंने हटा दी, बताते तो ओनली 15% ग्लोबली देखो तो 15% भी कम लोग होते हैं जो एपीएमसी जिनका कंट्रोल होता है। पहला काम ही एपीएमसी कंट्रोल करना है। We know A1C reduction by 1% reduces diabetes-related deaths by 21%, MI by 14%, microvascular complication 37, amputation 40. ये A1C reduction है. So believe me, when we talk about second line medication, हम बात कर रहे हैं early diabetes की, 6 महीने हुए, 12 महीने हुए, 2 साल हुए, 4 साल हुए. In early diabetes में what we need to do is we need to reduce HbA1c. अगेन ये ट्रायल्स यूकेपीडीएस एडवांस अकॉर्डिंग है, यूकेपीडीएस ने न्यूली डायग्नोज डायबिटीज वहां से स्टार्ट किया। जब न्यूली डायग्नोज डायबिटीज को आपने कंट्रोल किया, इन नेक्स्ट 10 इयर्स यू हैड माइक्रोवास्कुलर रिडक्शन, मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस वर रिड्यूस। जैसे जैसे स्टडीज एडवांस्ड लोगों को हायर करती हैं, एडवांस लोगों को रिक्रूट करेगी, यू गेट लेस बेनिफिट्स एज वी सी। और ये क्या थी यूकेपीडीएस में स्टडी? इट वाज ग्लिबिनक्लामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ये वाली सल्फोनाइल थी, पुरानी, अभी नई पे तो बात करेंगे हम, ठीक है। So this is diabetes in South Asians. South Asians की डायबिटीज मुख्तलिफ है यूरोप से, वेस्ट से, और इसीलिए गाइडलाइंस भी हमारी जो है वो भी बताने लगा ऊपर। The important thing is ये चिनाई स्टडी की, they said we have got more lean people and we have got more beta cell dysfunction. Our beta cells are making lesser insulin than what is happening in Europe and the US. And इन्होंने theoretical model propose किया जिसमें उन्होंने कहा हमारे यहाँ beta cell dysfunction ज्यादा है and probably sulfonylureas at an early stage might help these people control diabetes in the early years of their diabetes. Cost effectiveness, ये तो मैंने efficacy की बात की, double the effect है DPP4 inhibitor SGLT2 inhibitor के मुकाबले में। Cost effectiveness, पाकिस्तान में cost effectiveness का हाल देखते हैं। पाकिस्तान is fourth in the world with number of people with diabetes. 19 million diabetic population. डॉक्टर बासित कल बता रहे थे कि अब जो नया एटलस आएगा IDF में, उसमें 32 या 33 मिलियन पॉपुलेशन होगी, इतने सारे डायबिटिक है, ठीक है। एंड नाउ जस्ट लुक एट कि हमारे अफोर्डेबिलिटी स्टेटस क्या है। 40% ऑफ पाकिस्तानी हाउस होल्ड के पास अगले वक्त का खाना नहीं, उन्हें सोचना है कल मैंने खाना क्या खाना है, परसों मैंने खाना क्या खाना है। एक हमारी साइंस है, एक मरीज की साइंस है जिसको बिजली के बिल भी भरने हैं, बच्चों की फीस भी देनी है, बेगम की भी के लिए भी कुछ लेकर जाना है, याद रखना भी सब लोग, ठीक है। यू अंडरस्टैंड, एक हमारी साइंस है, एक मरीज की साइंस है। हम सिर्फ अपनी साइंस पे बात कर रहे हैं, मरीज को कौन देखेगा कि उसके डायनामिक्स क्या है, what can he afford to control his diabetes. So again, ये बता रहे 40% लोग पाकिस्तान में या गुर्बत की सतह से नीचे हैं या बिल्कुल गिरने वाले गुर्बत की सतह से नीचे। 40%, 100 में से 40 लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना कमाते रोज का? लेस देन 300 पर डे। तो मुझे बताएं कि डायबिटीज, अभी प्रोफेसर आमिर कल बता रहे थे कि व्हेन पीपल आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज दे ऑलरेडी हैव हाइपरटेंशन एंड डिस्लिपिडीमिया एंड दीस थिंग्स टू कैटर। तो 25 रुपए की दवा ले सकेगा जो 300 रुपए दिन के कमा रहा है? कौन हाथ उठा के कहता है कि ले सकेगा? कोई भी नहीं कह। तो ये सी मुश्किल हो जाता है ना। वी नीड टू सी पेशेंट फैक्टर्स आल्सो। सिर्फ हम अपनी साइंस पे बात करके पेशेंट फैक्टर्स को साइड पे नहीं कर सकते, और साइंस भी दिखाऊंगा। कॉस्ट कंपैरिजन, DPP4 मेटफॉर्मिन 800 रुपए से 1600 रुपए, ये मैंने अच्छी कंपनीज की लो कॉस्ट ब्रांड्स को देखा है। SGLT2 इनहिबिटर मेटफॉर्मिन 600 से 1200 रुपए, सल्फोनाइलयूरिया मेटफॉर्मिन 60 रुपए से शुरू होती है, 2 रुपए पर डे। वो जो ठेला लगा के बैठा है कि उसकी डायबिटीज कंट्रोल करना उसका राइट नहीं है। ये जो 40% पाकिस्तानी है, क्या ये हर कोई महंगी से महंगी दवा लेता चला जाएगा? जिसको हम कहते हैं साइंस कहती है कंट्रोल A1C इन द फर्स्ट 10 इयर्स, बाद में कॉम्प्लिकेशंस की परवाह करना, पहले डायबिटीज तो कंट्रोल की जाए। दैट्स द होल पॉइंट। सो अगेन दिस इज ADA गाइडलाइंस जो बताती हैं कि ADA की गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा है कि आफ्टर मेटफॉर्मिन इफ कॉस्ट इज एन इशू यूज सल्फोनाइलयूरिया। कम ऑन टू द सेफ्टी। ये सारे लैंडमार्क ट्रायल्स में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम शॉर्ट है। सबने बताया दे रिड्यूस HbA1c, हैव बेटर कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स। ये पूरी लिस्ट है इस इन स्टडीज की, जिसमें किसी में ग्लिमिपिराइड है, किसी में ग्लिबिनक्लामाइड है, किसी में ग्लिकलाजाइड है एडवांस ट्रायल में, दे ऑल हैव शोन better cardiovascular outcomes. Again, this is the UKPDS study, 10-year follow-up, जहां यूज हुई थी sulfonylurea, insulin यूज हुई थी, sulfonylurea यूज हुई थी। You see the benefits that you have when you control diabetes early, और इसको कहते हैं metabolic memory, the legacy effect। बच्चों को जो पहले 10 साल में सिखा दिया, उन्होंने अगले जितने साल है वही करना है। Same goes here, control diabetes initially, पहले 2-4 साल में हार्ट अटैक से फालिज से डरना नहीं है। In the first 2 years, you want crisp diabetes control to get the legacy effect. फिर ये एम्पर एग सारे जो ट्रायल्स थे, बात करता चाहता हूँ, करना नहीं चाहता था, माजरत होता। इन सारे ट्रायल्स में 9-10 इयर्स की डायबिटीज रिक्रूट हो रही थी, स्पेशली एम्पर एग। बाद में जाके कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी की फिक्र करनी, पहले तो डायबिटीज कंट्रोल करें जी। एंड देन द कैरोलिना ट्रायल, लीनाग्लिप्टिन वर्सेस ग्लिमिपिराइड।
लीनाग्लिप्टिन का ट्रायल था, दे कंपेयर्ड विद ग्लिमिपिराइड टू सी कि जी कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स क्या हैं, एंड 40% लोग कार्डियोवैस्कुलर पहले से थी जिनको ग्लिमिपिराइड मिल रहा है एक आंख को लीनाग्लिप्टिन, 40% को पहले ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है जी. What happened? The occurrence of major CV events was same in the linagliptin DPP4 inhibitor as compared to glimepiride. And again, after this trial, the ADA-EA has, there is a reassuring safety signal for glimepiride. बहुत सारी studies तो पहले ही थी. There is a जहाँ problem है sulfonylureas के साथ, वहाँ पुराने sulfonylureas के साथ. Sulfonylureas दो types, modern, conventional. Conventional यानी पुराने, glibenclamide. Modern, gliclazide, glimepiride. The modern ones are too good, not only to control diabetes, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए भी. So again, weight gain is a problem with sulfonylurea. हर चीज में, हर दवा में हर चीज नहीं मिलेगी. You have to take some pros, you have to manage some cons. ठीक है, वो तो सिर्फ आप घर में ही एक बस आइडियल हस्बैंड हो सकते हैं जिसमें सारी क्वालिटीज हों, लेकिन दवाइयों में ऐसा नहीं. ठीक है. So again, weight gain, sulfonylureas are linked to weight gain, a secondary effect also known to occur with insulin. ठीक है, इंसुलिन भी नहीं देंगे, वो भी वेट गेन कराती हैं. So again, the recent sulfonylureas, the modern ones like glimepiride and gliclazide, they have shown that they are close to being weight neutral. There are studies जो बताती हैं कि glimepiride has been weight neutral. There are studies which shows glimepiride sometimes can lose weight as well. हम कह रहे हैं it gains weight in most studies if you see, but then there are other things that you need to do. Look at this gliclazide, the weight neutrality in real life, the EASY-DIA study, 7,000 patients, and gliclazide proved to be some medication that was mostly weight neutral. And this is a model modern sulfonylurea. But then patient has to do something. हम patient को सिर्फ दवा देते हैं क्या? No. Pillars of management तीन है. Diet है, exercise है, medications है. So patient needs to be told you need to reduce weight by doing your lifestyle changes. उसको हम क्यों छोड़ दो? क्या हर चीज दवा से ले लें? No. Patient has to work hard in his 1 minute remaining. Oh my God. So I'll just take 2 more minutes, please, with your request. हमारी गाड़ी पुरानी है, कहानी लंबी है भाई. So just 2 more minutes, please. Thank you. So again, this study shows that hypoglycemia is too less. And then bring the snacks in. आज बहुत सख्त हो गए हैं. So guidelines, right? So guidelines, this is the IDF guidelines, which shows that sulfonylurea can be used as a second line agent. And then I won't go into the side effects. Pakistan Endocrine Society की जो last guidelines थी, उसमें sulfonylurea number 2 थी. फिर STEFI, South Asian Federation of Endocrine Societies, ने भी एक consensus statement निकाली 2015. Professor Amir is with us. Dr. Abbas Raza आज होने पे है नहीं है, इनके लिए वाकई salute है. They said in these guidelines that sulfonylurea is effective, safe, well-tolerated medication. Effective second-line agents after metformin. South Asia के खित्ते की बात हो रही है. We are not talking about Europe and the US. And then what happened was the same group in 2018 joined hands with the Middle Eastern and the African counterparts. और फिर इन्होंने यही बात दोबारा दोहराई कि sulfonylurea, the modern ones, are effective and safe second-line agents in patients who have not taken a good diabetic control. ये glimepiride versus DPP4 inhibitors का मेटा एनालिसिस है 2015 का. डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं. और इन्होंने बताया कि well, both the glimepiride metformin is more effective because it is cost effective. एडहेरेंस बेहतर है, मरीज आता है 6 महीने के लिए वापस नहीं आता है, कम से कम डायबिटीज को कंट्रोल करे. न्यूरोट्रॉपिक इफेक्ट्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम करता है सल्फोनाइल्यूरिया. मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे प्लेयोट्रॉपिक इफेक्ट्स हैं, पीछे से नोटिस आ गए हैं. तो सल्फोनाइल्यूरिया एसेंशियल मेडिकेशंस की लिस्ट में, WHO की भी, पाकिस्तान की, पूरे साउथ एशियन के खित्ते में मेटफॉर्मिन एंड ग्लिबिनक्लेमाइड आर एडेड इनटू द लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकेशंस. फिर कुछ और बातें, इतने ब्रॉड होराइजंस हैं. मैंने कहा गाड़ी पुरानी है, कहानी लंबी है. प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं ग्लिबिनक्लेमाइड. If somebody is absolutely refusing for insulin, you can use glibenclamide. Again, monogenic diabetes में आप दे सकते हैं. मोडी की बहुत सारी varieties में there is a role for sulfonylureas. And with this, I thank you all for your patient listening. Thank you very much.